Hello guys, welcome to my YouTube channel Info by Sunil. So, in today's lecture, we will try to understand some key features about manufacturing industries, what was their role in India, especially in context of the popular industries like the belt we have like Jharkhand belt, Chhattisgarh. That was the area where most of the production of like iron ore, mica, limestone, these kind of things were mainly found, like steel from iron industries, which we have already discussed in mineral and energy resources. You can check that on my previous video where I have explained this in detail. So now we will try to understand about manufacturing industries. So there was a story which we have. I will try to explain this. Then we will going to explain importance of manufacturing, and this was also given in class 10th NCERT book. You can go and check it out. So for now, we will try to understand about manufacturing industries. Like one of this is a very good example. Like on the occasion of Diwali, Harish went to a market with his parents. They purchased shoes and clothes for him. His mother purchased utensils, sugar, tea, and diyas. Harish observed that the shoes in the market were flooded with the items for sale. He wondered how so many items could be made in such large quantities. His father explained that shoes, clothes, sugar are manufactured by machines in large numbers. Some utensils are manufactured in small industries, while items like diya are made by individual artisans in household industries. I will also explain this in Hindi to make it clear. So you can clearly see that there was a festival called Diwali where Harish, who went to the market with his parents, and they purchased shoes and clothes for him, and where we have seen that like the materials like sugar, tea, diyas, in which he observed that markets were flooded with items for sale, because for the market person it was very important to know that from which product they get maximum benefit from it. So they were very well aware of the fact that they will get benefit from the things like shoes, clothes, sugar, etc. These all were manufactured in manufacturing industries. And especially we have diyas, which are probably made by individual artisans, and it was also produced in a very large scale, and it was produced in household industry. So there are very types of industries, many more which we can learn later, but for now it was example of household industry, like in house diyas were made इन एवरी फैमिली, यू कैन सी दैट. सो कहने का मतलब ये है कि इसमें बता रखा है स्टोरी में कि हरीश जो है वो अपनी फैमिली के साथ मार्केट में जाता है, वहाँ पर वो दिया लैम्प ये सब चीज़ें देखता है, और इसमें सिंपल ये बता रखा है बस कि दिया जो कि एक हाउस होल्ड इंडस्ट्री का एग्जाम्पल है, तो किस किस तरीके से क्या क्या इंडस्ट्रीज़ बन सकती है हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है ना. लाइक अब हमें इंपॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग पता होनी चाहिए ना. लाइक वी ऑल नो दैट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इज़ कंसिडर एज द बैकबोन ऑफ डेवलपमेंट इन जनरल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट. मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो सिर्फ मॉडर्नाइज नहीं कर रही एग्रीकल्चर को, इट ऑल्सो वो क्या कर रही है कि जो हैवी डिपेंडेंस है लोगों का एग्रीकल्चर फील्ड में उसको कम कर रही है. कहने का मतलब ये है कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ के आने से एक तरीके से जॉब एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट हो रहा है. The point is that with the help of manufacturing industries, more and more job opportunities were created for individuals, because earlier they were simply dependent upon agriculture sector. So in agriculture sector most of the people were dependent, but with the coming of manufacturing industries we have seen that job employments were increasing more and more. So that's the point. Here also written as industrial development is a precondition for eradication of unemployment. That's what I say, and that's what I want to say, that it will also help to reduce the unemployment in our country, because
We all know that it was the main problem, as well as when we trying to reduce that unemployment situation, it will automatically help individuals to better their life in such a way. Export of manufactured goods expands trade and commerce in bringing in much needed foreign exchange. Another point is that or you can say importance of manufacturing, that with the export of manufacture increase, we have also seen like trade and commercialization was also increased. Like it was not just restricted towards only one country, it was also circulated on from more than one country. Countries that transform their raw material into a wide variety of finished goods of higher values are prosperous. India's prosperity lies in increasing and diversifying its manufacturing industries as quickly as possible. So, it was very clear that the country which transform themselves better will go, will automatically get benefit from that. तो कहने का मतलब ये है कि जो कंट्री अपने आप को रॉ मटेरियल को बहुत अच्छे से यूज़ करेगी अपनी इंडस्ट्रीज़ को बनाने में, वही ट्रांसफॉर्म होगी और वही डेवलप होगी, उन्हीं की हायर वैल्यू होगी वर्ल्ड लेवल पे. एंड वी हैव ऑल्सो सीन दैट with the help of these industries are not exclusive of each other, they move in hand. So now we will move on to contribution of industry to a national economy. So by this point, like contribution of industry to a national economy, that means we have to very much aware of the fact that the industries which were set up in India were very much backward, downward, and stagnant in terms of what we think of that industries in our India was very prosperous, rich, and very productive, but that's not the reality. In actual, the case was very different. Like our manufacturing industries were very backward, and they need to be transformed and they need to be developed and need to be productive, because we have to be very much well aware of the fact that industries have a very simple kind of image, but it need to be transformed. And what I want to say is that like it was given example like from the last 2 decades, the GDP in these manufacturing sectors was stagnant. It means it was reduced 17% out of 27%. And I want to say that we have 10% for mining, quarrying, electricity and gas, and this is much lower in comparison to other East Asian economies where we have seen that it was from 25 to 35%. So my point is that in manufacturing industries we need a proper policies which can created by government, and which will obviously fulfill the government priorities, because it is very important for us to understand that the growth of manufacturing industries was as important as growth for any industries, because this is the industry. So we have to be very much careful about that what approach we need to adopt. Like from this you can understand that the growth rate was only 7% per annum in manufacturing industries, and it was assuming that over the next decade it might be increase up to 12%. It was not sure, it was just an assumption made by some thinkers. And we have to be very aware of the fact that these industries need to be promoted. And there was a council called NMCC, means National Manufacturing Competitiveness Council, which has been set up with the objective to by the government to renew efforts by the industry to improve productivity. Economists predict the manufacturing can achieve its target over the next decade. So अगर हम हिंदी में बात करें तो इस पॉइंट में लिखा है कि कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्री टू नेशनल इकोनॉमी. कहने का मतलब ये है कि हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है वो
ग्रोथ में बहुत नीचे है कंपेरिजन टू अदर ईस्ट एशियन इकोनॉमीज़ हैं, जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की ग्रोथ बहुत अच्छी खासी है। लेकिन हमारी इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की ग्रोथ इतनी कम है कि हम बता नहीं सकते। जैसे कि हमारी जीडीपी का बता रखा है इन्होंने कि 27% में से जो 17% है वो स्टैगनेंट हो चुका है, वो ख़त्म हो चुका है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में, और सिर्फ 10% जो बचा है वो हमारा माइनिंग और इलेक्ट्रिसिटी और गैस में लग जाता है। तो 17% जो है वो तो हमारे जीडीपी में कट रहा है ना, 17% का लॉस हो रहा है हमारी जीडीपी को मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की वजह से। दैट्स द मेन पॉइंट है। और ये बोलते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ का सिर्फ 7% पर एनम पूरे एक ईयर में, पूरे डिकेड में हुआ है 10 साल के अंतर्गत, और अगले डेकेड में बोला जा रहा है कि ये 7% से बढ़कर 12% हो जाएगा। लेकिन 2003 में मैन्युफैक्चरिंग फिर से ग्रोथ होने लगा 9 to 10% पर एनम। और ये भी इम्पोर्टेंट है कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ की ग्रोथ हम करा सकते हैं अगर कुछ पॉलिसीज़ इम्प्लीमेंट की जाए गवर्नमेंट के द्वारा, जिससे कि हमारा कंट्री का ओवरऑल ग्रोथ हो और वो हेल्प करे हमें प्रोडक्टिवली। सो अगर हम अगले पार्ट में देखेंगे तो हम इंडस्ट्रियल लोकेशन के बारे में जानेंगे कुछ लाइक इंडस्ट्रियल लोकेशन which we have which are complex in nature. These are influenced by availability of raw material, labor, capital, power, market, है ना। एंड इंडस्ट्री मार्केट में हम देखते हैं हमारे पे एग्लोमरेशन इकोनॉमी भी आ जाती है। इसमें बहुत सी इंडस्ट्रीज़ होती हैं जो एक साथ मिल के आती हैं, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा एडवांटेज उठा सके, जो कि अर्बन सेंटर्स रहते हैं, जिसको हम एग्लोमरेशन इकोनॉमी बोलते हैं, है ना। वही बता रखा है। मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, ये सब इंपॉर्टेंट सेंटर्स हैं इंडस्ट्रीज़ के। इंडस्ट्री का जो मार्केट लिंकेज है वो ज़्यादा है इनपुट लेवल पे। इंडस्ट्रीज़ विच हैव मार्केट लिंकेज इनपुट्स where we have raw materials and or component parts, factors and production, land, labor, capital, entrepreneur, infrastructure. Then we have transport, then we have factory, then we have output product, again transport, market. And from this process it was very easily for the helpers to generate more and more money from this. Like in this table you can see the cost of obtaining raw material at a site, cost of production at site, cost of distribution of production, decision to locate factory at site. तो आप यहाँ देख सकते हैं कि किसी भी इंडस्ट्री को लोकेट करने के लिए क्या क्या चीज़ें की ज़रूरत पड़ती है। ऑब्वियसली लेबर तो चाहिए आपको। अगर आपको किसी भी इंडस्ट्री में एक सेटअप करना है, आपको क्या क्या लगेगा उस पर, आपको लेबर लगेगा, आपको पानी लगेगा, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज़ ऑल्सो अ वेरी बिग फैक्टर। उसके बिना तो आपकी इंडस्ट्री चलेगी ही नहीं। एज वेल एज आपको खर्चा लगेगा रॉ मटेरियल के ऊपर कि क्या कॉस्ट है, आपको वो मैनेज करना पड़ेगा। एक और ये है कि आप किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करते हो प्रोडक्शन को, बिकॉज डिपेंड करता है वो आपके ऊपर कि आप किस तरह से अपने प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करो। फॉर एग्जांपल अगर आपका प्रोडक्ट 100 रुपये का है तो आप वो 10 लोग में बांटना है, तो आप ऐसा तो नहीं है कि 10 कुछ आप उसका शायद और कोई शॉर्ट तरीका दे सकते हो। सपोज़ आप उसको कम से कम में अगर बांटने की कोशिश करो, 1/3 कर दो या 1/4 कर दो, जिससे कि कुछ तो बचे जो आपको प्रॉफिट करे। सो माई पॉइंट इज़ कि इंडस्ट्रीज़ को सेटअप करने से पहले हर इंडस्ट्रियलिस्ट के दिमाग में प्रॉफिट वॉज द मेन फैक्टर। दे वॉन्ट टू अर्न मोर एंड मोर, एंड बिकॉज वी ऑल नो दैट कार्ल मार्क्स वर्ल्ड सिंपली आइडियोलॉजी के ऊपर बेस्ड होता है। अब देखिए रॉ मटेरियल के बेसिस पर हमारे पास दो इंडस्ट्री होती है, एग्रो बेस्ड, मिनरल बेस्ड। एग्रो बेस्ड का मतलब है एग्रीकल्चर के ऊपर जो बेस्ड होती है, जैसे कॉटन, वुलन, जूट, सिल्क, टेक्सटाइल, रबर एंड शुगर, टी, कॉफ़ी, एडिबल ऑयल। मिनरल बेस्ड के ऊपर हमारे पे आयरन एंड स्टील, सीमेंट, एल्यूमिनियम, मशीन, टूल्स, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज़ है। मेन रोल के बेसिस पे देखिए तो हमारे पास बेसिक इंडस्ट्रीज़ है और कंज्यूमर इंडस्ट्रीज़ है। तो बेसिक इंडस्ट्रीज़ हमारी वो होती है जो कि प्रोडक्ट को सप्लाई करती है एज अ रॉ मटेरियल, जिससे कि वो मैन्युफैक्चर कर सके और गुड्स को। जैसे आयरन स्टील इंडस्ट्री बेसिक है हमारी। कंज्यूमर इंडस्ट्री जो कंज्यूम करती है, हाँ, जैसे शुगर, टूथपेस्ट, पेपर, स्विंग मशीन, ये सब डायरेक्टली कंज्यूमर कंज्यूम करते हैं ना। हाँ वही। कैपिटल इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे हमारे पास स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं, छोटे छोटे, मतलब इन्वेस्टमेंट इनका छोटे लेवल का होता है थोड़ा, और वो कुछ पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है, परमानेंट नहीं होता। ओनरशिप के बेसिस पे हमारे पे पब्लिक सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर है, जॉइंट सेक्टर है और कोऑपरेटिव सेक्टर होता है।
पब्लिक सेक्टर में हमारा भेल सेल आता है जो कि गवर्नमेंट बेस्ड होता है। प्राइवेट सेक्टर वी ऑल नो, प्राइवेट में टिस्को, बजाज ऑटो प्राइवेट लिमिटेड ये सब आते हैं। जॉइंट सेक्टर में हमारे पे जो कि स्टेट के द्वारा रन किया जाता है और इंडिविजुअल्स और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स उसमें शामिल होते हैं। ऑयल इंडिया लिमिटेड इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जो जॉइंट सेक्टर है। जॉइंट मतलब क्या है कि एक लीडर है अपने पूरे ग्रुप के अंदर एज अ कलेक्टिवली वर्क कर रहा है, दैट्स व्हाट दे मीन। कोऑपरेटिव सेक्टर वो होती है इंडस्ट्रीज जो कि ओन की जाती हैं प्रोड्यूसर्स के द्वारा, जो कि रॉ मटेरियल्स को सप्लाई करते हैं, है ना, वो कोऑपरेटिव सेक्टर है। मतलब कि सपोज एग्जांपल, अगर एक कोई भी दुकान पे आप जाते हो दूध लेने या कुछ भी लेने, तो उस पर जो वो एक तरीके का क्या है, वो दुकान है उसके ऊपर उसको दूध देता कौन है, उससे पिछले का जो रिटेलर होगा, जो ट्रांसपोर्टर होगा, वो उसे आकर देता होगा और उसका 2-3 रुपये का बीच में प्रॉफिट होता होगा वो रखता है ना। तो इस तरह से ये ट्रांसपोर्ट होता है। कहने का मतलब है कि एक आदमी से दूसरे आदमी से तीसरे आदमी तक ये पास होता है और इसका जो मेन एम होता है वो सिर्फ प्रॉफिट कमाना होता है और कुछ भी नहीं। ऑब्वियसली हम सब वर्क ही इसलिए करते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकें उससे, ठीक है। और अगर हम बात करें बेस्ड ऑन द बल्क एंड वेट ऑफ रॉ मटेरियल एंड फिनिश गुड्स, तो हम देखते हैं कि हमारे हैवी इंडस्ट्रीज़ हो गए जैसे आयरन एंड स्टील, लाइट इंडस्ट्रीज़ में हमारे पास है लाइट रॉ मटेरियल प्रोड्यूस लाइट सच गुड्स इलेक्ट्रिकल, करेक्ट। इस टेबल में आप देख सकते हैं कि हमारे पे फाइबर प्रोडक्शन है जो कि ट्रांसफॉर्म हो रही है फ्रॉम स्पिनिंग टू वीविंग, डाइंग, फिनिशिंग, गारमेंट। ये एक प्रोसीजर है ना। फाइबर में रॉ फाइबर लगता है, स्पिनिंग में यार्न लगता है, वीविंग बुनने में फैब्रिक लगता है, कपड़ा ऑब्वियसली डाइंग और फिनिशिंग में फिर गारमेंट्स कपड़े बन जाते हैं लास्ट जाके। हमारे पे टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज भी है, कॉटन टेक्सटाइल भी है। सो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ की अगर हम बात करें तो इसकी बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है हमारी इंडस्ट्रीज़ में, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में बहुत हेल्प करता है, एज वेल एज एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करता है, फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स पे काम आता है ना। और कॉटन में ये बात की सो और यहाँ पे दे रखा है फर्स्ट सक्सेसफुल टेक्सटाइल मिल जो है मुंबई में स्टैब्लिश हुआ था 1854 में, है ना। जो 2 वर्ल्ड वॉर हुआ था यूरोप इंडिया में, ब्रिटिश कॉलोनी का टाइम था, है ना। तो आई गेस ये इनफ रहेगा एंड आप इसको रीड कर सकते हैं जाके, आपको और अच्छा पता चलेगा। यहाँ अगर हम जूट टेक्सटाइल के बारे में देखें तो आपको पता है इंडिया सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है जूट का आफ्टर बांग्लादेश। यहाँ पे लिखा भी है सबसे पहले जूट मिल जो है कोलकाता में सेटअप हुआ था 1885 रिश्तेदार में, समझ लो। कॉटन मिल होगा तो वो मुंबई होगा, जूट मिल होगा तो वो रिश्तेदार होगा कोलकाता में, समझे। ये बता रखा है फैक्टर्स जो कि लोकेशन के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं बेसिकली बेसिस पे, ये सब बता रखा है। जैसे कि एक है हमारा इनएक्सपेंसिव वाटर ट्रांसपोर्ट सपोर्टेड बाय गुड नेटवर्क ऑफ रेलवे। आगे हम देख सकते हैं श्योर इंडस्ट्री है हमारा, श्योर इंडस्ट्री ऑब्वियसली सेकेंड मोस्ट पॉपुलर है इंडिया में, बट फर्स्ट प्लेस आता है इन गुड़ और खंड सारी में। रॉ मटेरियल इंडस्ट्री इसमें यूज़ होता है, बल्कि होता है, सुक्रोज कंटेंट होता है। उत्तर प्रदेश इसका हाईएस्ट प्रोडक्शन है स्टेट, जो इंडिया में सबसे ज़्यादा शुगर मिलता है यहाँ पे। वो बता रहे बाकी सब स्टेट्स के नाम दे रखे हैं जहाँ पे शुगर मिलता है। 60% मिल्स जो है हमारी उत्तर प्रदेश और बिहार में है शुगर की बात, करेक्ट। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री का देख सकते हैं, बहुत हैवी इंडस्ट्रीज होती है ना। स्टील से मैनुफैक्चर होता है बहुत तरह के मैनुफैक्चरिंग गुड्स और प्रोसेस दे रखा है मैनुफैक्चरिंग ऑफ स्टील ब्लास्ट और फर्नेस में किस तरह की चीज़ें वर्क करती है। मिनी स्टील प्लांट्स भी दे रखे हैं स्मॉल लेवल पर वर्क होती है। फिर आप देख सकते हैं मैप है और ये लास्ट में हमारे केमिकल इंडस्ट्री में जो केमिकल प्रोड्यूस करती है वही ज़्यादा इंडस्ट्री है। अब ज़्यादा इसमें देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।